Today we have the webinar on respect and redefine. We have the expert Shailaja Andhare madam. She is a vice president of Bharatiya Stree Shakti. She is president and trustee of Stree Chetna, Gujarat. She RSS Gujarat Plant Mahila Samanvay Pramukh. She worked 30 years in educational field, having counseling experience to youth for these years. She also worked dedicated for women empowerment, upliftment, safety, counseling through her social organizations. She is also a nutritionist, diet counseling to various patients. She also participated and organized seminars related to gender equality, role of he and she, respect redefined, gender sensitivity, sexual harassment, etc. in college, clubs, police and government training workshops. Her aim is through such awareness program to create positive atmosphere in society, especially young generation. So we have very good personality with us for next 1 hour. I would like to request all the viewers, please join with us for next 1 hour and ask any questions on my personal WhatsApp, or you can also write on the chat. Welcome, madam, once again. Madam, please start your presentations and presentations. Thank you, madam. Okay, thank you. नमस्कार, पारुल यूनिवर्सिटी का अध्यापकगण और सभी स्टूडेंट्स, विविध संस्थाओं की कार्यकर्ता बहनें, सभी को हार्दिक नमस्कार। आज के पारुल यूनिवर्सिटी के वेबिनार की कोऑर्डिनेटर हेतल जी और एमएस यूनिवर्सिटी वडोदरा स्त्री चेतना की कोऑर्डिनेटर शीतल जी, उन दोनों को आयोजन के लिए मैं हार्दिक धन्यवाद देती हूँ। आज का जो विषय है रिस्पेक्ट रीडिफाइंड, सम्मान की पुनर्परिभाषा। हम तो व्यक्ति तरीके से एक दूसरे को सम्मान देते हैं, उसमें थोड़ा विचार करने की आवश्यकता है। विशेषतः स्त्री पुरुष का एक दूसरे के कार्य के तरफ देखने का नजरियों में परिवर्तन लाने की जरूरत है। इसलिए यह स्त्री या पुरुष का विषय नहीं है, लेकिन संपूर्ण समाज या परिवार का यह विषय है। ऑनलाइन वेबिनार्स के कुछ पॉजिटिव पॉइंट्स हैं और कुछ मर्यादाएं भी हैं। सचमुच रिस्पेक्ट रीडिफाइंड टॉपिक पर अभी तक जितने यूनिवर्सिटीज में मैंने कुछ बात की है, विचार व्यक्त किए हैं, उसी समय वक्ता और श्रोताओं इंटरेक्शन हो तो ये टॉपिक सचमुच रसप्रद होता है। एक दूसरे के साथ चर्चा करने से कुछ सॉल्यूशन निकलता है। एनीवे, आज भी आप लोगों को चैट बॉक्स में आपके विचार शेयर कर सकते हैं और उसके बाद कुछ चर्चा कर सकते हैं। इस कोविड-19 के समय दौरान ऑनलाइन वेबिनार से कभी कभी तो हम तंग आ गए हैं, लेकिन यह डिजिटल टेक्नोलॉजी हमें मदद भी करती है, लेकिन एक दूसरे को हम न देखने के कारण कभी कभी मजा नहीं आती। इसलिए आज मुझे ऐसा लगता है कि मैं एक स्टोरी से आज शुरुआत करूंगी। हम सब लोगों ने अपने घरों में या आजू बाजू में ये सारा देखा है, लेकिन तो भी कुछ जानने का प्रयास करेंगे। प्लीज दैट स्लाइड, इम्पॉसिबल ड्रीम स्लाइड दिखानी है। दिस इज अ स्टोरी अबाउट फैमिली, mother, father and children. The mother is the early to rise. Her daily routine starts by waking her children, cooking breakfast, taking care of the baby, getting the children ready for school and preparing lunch for everyone. The father and son become ready and they become sometimes impatient if their breakfast is not ready in time. Before leaving the house for factory, the mother must finish her whole morning course and household work. What is the job of the mother? She is also working. Her job is stitching the garment factory. It is very tiring. Her wages are also half of her husband's. Though she works the equal time, even then she gets the half salary.
After work, the husband meets his friends, usually goes to a hotel and spends money. And his wife, she shops, fetches the baby from the school and return home to do the again housework. Cooking, washing, ironing, cleaning, etc. Her daughter is also obliged to help her. Next slide, please. Next slide. Sheetal, next slide. When the husband comes home, he changes the clothes and throws them on the floor. He and his son watch TV and relax. The lady, if she has to watch TV, she does knitting, vegetable cutting, stitching, etc. so as not to waste the time even while watching TV. The man takes dinner and goes to bed. The woman has to finish all her domestic work before sleeping. At night, while asleep, she has a dream. ये स्टोरी को जो हमने नाम दिया है इम्पॉसिबल ड्रीम. तो the lady had a very sweet dream. What she dreams? She dreams that in the morning she and her husband get up at the same time. Her husband helps her to get the children ready for school and assist with the household work. Husband, wife, son and daughter, all the 4 members, they share the equal family responsibility. The gents also learn some traditional work, that is, which is reserved for the ladies, that her husband even starts learning knitting, stitching and little bit cooking also to help her in the kitchen. The woman wakes up, the dream is over and she starts thinking, oh, is this an impossible dream? Can it happen like this in the reality? What do you think, all of you? Now see, if you would have interacted to me, we had some discussion points. Next slide, please. After listening this story, we wanted to discuss with you all, but now just I'm putting the points for your thinking. Here, when we read the story, or even in our family or in the society, we find out and we all know, as a student, as a teacher or whoever the karyakartas are there, that we know and we can list the responsibilities of woman and man. The second discussion point can be, describe the woman's and man's daily routine. What does a woman do as soon as she gets up, wakes up, and what does the man do, and until they go to bed, what is their daily routine? Why do you think that the woman had a dream? See, you students, young generation, you are also habituated to have good dreams at home. And we all are having, we all experience. And we all dream what we wish to have. जो हमें रियलिटी में वास्तव में नहीं मिलता है, उसको हम सपने में देखते हैं. The woman wanted the respect, understanding, consideration from the male members in the family and even at her workplace. That's why she had this dream. Now, all of us, we have to think. आज का जो टॉपिक है रिस्पेक्ट रीडिफाइंड, उसमें भी हम चर्चा करने वाले हैं कि कैन दिस ड्रीम कम ट्रू, और ये जो ड्रीम सपना सच होने वाला होगा तो कैसे हम वो सपने को रियलिटी में ला सकते हैं. हाउ डू चिल्ड्रन लर्न टू बिहेव इन द फैमिली. ये जब हम बात करते हैं तो हमें सबको मालूम है कि बच्चे जो होते हैं दे ऑब्जर्व, दे इमिटेट एंड फॉर दिस दे आर दिस थिंग बिहेविंग एंड फॉर्मिंग देयर लाइफ. ये इसके बारे में बच्चे कैसे सीखते हैं, इसके बारे में हम एक नेक्स्ट स्लाइड में देखने वाले हैं. कंपेयर द वे मेंबर्स ऑफ फैमिली स्पेंड देयर लीजर टाइम. हमने देखा कि जो पिता होता है, मैन होता है, he relax and watches the TV, and the woman while watching the TV also she is doing some or other domestic work. And ये दो बात के जो डिस्कशन पॉइंट्स है वो तो बहुत इजी है, हम सबको मालूम है who does more work in the family or society and who gets more comfort. Anyway, now अभी एक नेक्स्ट स्लाइड जो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि how do the children they learn in the family.
नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। ये जो है एक केरला में एक 9th स्टैंडर्ड की जो लड़की है, तो उसने उसके स्कूल में उसके टीचर ने जब कुछ पेंटिंग बनाने के लिए कहा कि हमारे घर में किस प्रकार का वातावरण होता है, तब उसने ये पेंटिंग किया है। और इसके साथ हमने लिखा है कि हमेशा वो फैमिली में देखती थी कि उसके जो पिता है वो लोगों को जो कुछ उनके घर आए या आजू बाजू में या बच्चों को भी बोलते हैं कि मेरी वाइफ क्या करती है, कुछ नहीं, वो घर में ऐसी ही बैठी रहती है और मैं बाहर जाकर वो पैसे कमाता हूँ। ये जब वो लड़की देखती थी तब उसको ये अभी जो इम्पॉसिबल ड्रीम में हमने देखा कि पुरुष और स्त्री का सारा जीवन क्रम दिनचर्या कैसी होती है, वो तो वो देखती थी। और उसने देखा था कि मेरी माँ तो कितने सारे काम करती है और वो जो जो कुछ काम करती है, आप ये पिक्चर जरा थोड़ा इस प्रकार नहीं देख सकते, लेकिन इसमें उसने कम से कम 12-14 ऐसे काम बताए हैं कि सुबह से रात तक उसकी माँ काम करती है। और केरला के गांव में तो उसका कितना हेक्टिक शेड्यूल था। और ये करने के बाद उसने लिखा है कि आई नो व्हाट माय मदर डज फ्रॉम मॉर्निंग टिल नाइट, यानी जो वो पिता बोलते थे उसको उसने जवाब दिया। उसके शिक्षक ने जब ये पेंटिंग देखा तो वो तो एकदम चकाचौंध सरप्राइज हो गए और उन्होंने सोचा कि ये बच्ची में कितना उसका ऑब्जर्वेशन शार्प है और उसने कितनी अच्छी तरह से ये पेंटिंग में दिखाया है। तो उन्होंने ये दिल्ली सरकार को ये भेजा और केरला का जो जेंडर बजट हुआ है तो उसका फर्स्ट कवर पेज जो है, तो जेंडर बजट यानी विमेन के लिए, महिलाओं के लिए जो बजट किया जाता है, तो उसमें ये महिलाओं के हमें क्या क्या करना चाहिए, इसलिए फर्स्ट कवर पेज इज दिस पेंटिंग ड्रॉन बाय दिस 9th स्टैंडर्ड गर्ल्स। तो इस प्रकार अभी हमने ये सारा जो देखा समाज में रिस्पेक्ट रीडिफाइंड ये विषय करने के लिए, चर्चा करने के लिए हमें क्यों जरूरत पड़ रही है, तो ये अभी जो जानना होगा। तो मुझे लगता है कि हमें थोड़ा उसका जो शास्त्रीय दृष्टिकोण है वो समझना चाहिए। पहली जो स्लाइड है जेंडर एंड सेक्स, प्लीज दैट फर्स्ट स्लाइड। इसके बाद की डेफिनेशंस जो है वो, हाँ, अभी जब है ये हम कहते हैं समाज में ये जो देखते हैं कि स्त्री और पुरुष के बर्तन में जो भेदभाव है, तो उसमें जेंडर एंड सेक्स ये दोनों टर्म्स, दोनों व्याख्या, दोनों शब्दों का हम यूज करते हैं, लेकिन दोनों को अच्छी तरह से समझने की आवश्यकता है। जेंडर यानी क्या? जेंडर मीन्स सोशली डिफाइंड डिफरेंसेस बिटवीन द सेक्सेस, man-made differences. They vary from region, according to race, religion, class and social values. यानी एकदम सिंपल लैंग्वेज में कहना होगा तो जेंडर यानी जाति, जिसको हम हिंदी में कह सकते हैं, और ये जो है ये मनुष्य निर्मित है। स्त्री पुरुष के जो कार्य के कारण उनका जो काम है समाज में, परिवार में, तो और वो ट्रेडिशनली जो हमने विचार करके निश्चित किया है कि ये महिला का काम है, ये पुरुष का काम है, और उसके कारण जो भेदभाव करते हैं तो उसको हम जेंडर डिफरेंसेस या जेंडर कह सकते हैं। एंड व्हाट इज द सेक्स? सेक्स का हिंदी में हम अनुवाद कर सकते हैं लिंग। सेक्स मीन्स फिजिकल डिफरेंसेस बिटवीन मेन एंड वीमेन ओवर विच वी हैव नो कंट्रोल। जैसे कि जन्म के कारण जो हम, ये हमारा शरीर है, ये स्त्री का या पुरुष का जो पाते हैं, और स्त्री और पुरुष के जो अवयव है और उसके कारण हमारे जीवन के जो कार्य निश्चित होते हैं, तो उसको हम सेक्स कह सकते हैं। और दे आर नॉट अंडर कंट्रोल, जस्ट बाय बर्थ वी हैव गॉट एज अ लेडी और एज अ मैन, एज अ स्त्री या पुरुष, ऐसा हमने जन्म लिया है। इसीलिए हमने जब अभी आगे का ये जो सारी चर्चा हम करेंगे, बात करेंगे, तब जेंडर और सेक्स इसमें हमें एकदम जो उसका स्पष्ट फर्क है, तफावत है, वो समझनी चाहिए। वी शुड नॉट मिक्स द बोथ द टर्म्स। अभी ये जेंडर और सेक्स, नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। नहीं, वो जो चार्ट है वो, हाँ वही। अभी जो जेंडर और सेक्स है तो वो समझने के लिए मैं कुछ स्टेटमेंट्स जो हम समाज में, परिवार में हमेशा हमारे जीवन में उपयोग करते हैं। अभी जब इंटरेक्शन होता है या सामने एक दूसरे के होते हैं तो उसके जवाब तो आगे के श्रोता लोग ही दे देते हैं। अभी ये मुझे ही बोलना पड़ेगा
इसलिए मैं आपको बस पढ़कर बताती हूँ कि स्त्री पुरुष में जो फर्क दिखते हैं उसको हम समझेंगे। तो एक जो है वो नैसर्गिक जन्म के कारण यानी सेक्स के कारण है, और दूसरे जो है वो हमारी जो सोशल बिहेवियर है, पैटर्न है, हमारे विचार है, समाज में जो हम देखते हैं उसके कारण जो ये स्टेटमेंट का हम डिफरेंशिएशन क्लासिफाई कर सकते हैं। द मैन इज अ ब्रेड विनर, जो पुरुष है वही आर्थिक कमाई करता है, घर चलाता है। तो ये जेंडर में आएगा या सेक्स में? तो ये जेंडर में आएगा। क्यों? क्योंकि अभी हमने देखा है कि अभी की परिस्थिति तो ऐसी है कि जहां स्त्री और पुरुष दोनों घर के लिए अर्थार्जन करते हैं, दोनों ब्रेड विनर हैं, तो इसीलिए ये जेंडर। लेकिन सालों से हमेशा हमारे मन में मानसिकता क्या होती है कि द मैन इज ओनली द ब्रेड विनर, अ मैन कैन नॉट गेट प्रेग्नेंट। यस, दैट वी नो। वी लेडीज आर वेरी वेरी फॉर्चुनेट and we should understand ourselves very lucky that after God we only have got the quality or the strength of creating the world. जनरेशन टू जनरेशन ये सारा जो पृथ्वी या विश्व चल रहा है वो महिलाओं के कारण चल रहा है, और इसमें हम सेक्स कहेंगे, ये जेंडर नहीं है, क्योंकि बायोलॉजिकली द गॉड हैज क्रिएटेड लेडी that she only can become pregnant and she only can give birth to a child. तीसरा स्टेटमेंट हम पढ़ेंगे तो ऐसा है, गर्ल्स ड्रेस इन पिंक एंड बॉयज ड्रेस इन ब्लू। ये तो हमने ही उसका ये किया है कि हमेशा महिलाएं कौन से कलर के कपड़े पहनेंगे, पुरुष कौन से कलर के। वीमेन menstruate, men don't. Again, this is a biological difference that the lady is having the menstruation power quality and men don't, and because of that only she can be the mother. Men can't cook. ये तो हमेशा रसोई में घर में हमेशा ये कहता है कि बहन जो ये लॉकडाउन में भी हमने देखा, अभी अभी थोड़े जेंट्स है, बॉयज आप लोग स्टूडेंट्स है तो वो सीख गए हो कि हमें भी कुकिंग का जेंडर डिफरेंस है। अ गर्ल कैन नॉट प्रपोज मैरिज टू अ बॉय। हमेशा ऐसा समझा जाता है कि जो स्त्री है वो डेलिकेट है, नाजुक है, शर्माती है, इसीलिए हमेशा पुरुष ने ही उसको विवाह के लिए आगे आकर कहना चाहिए। लेकिन अभी तो हमें मालूम है समाज थोड़ा परिवर्तन हो रहा है, जमाना बदल रहा है, तो अभी गर्ल्स भी कोई अच्छा उसे लड़का दिखाई दे और पार्टनर साथीदार हो तो वो भी प्रपोज करते हैं। इट इज नॉट द जॉब ऑफ द फादर टू चेंज नैपीज। रात को जब पति पत्नी हो जाए, यहाँ कितने सारे स्टूडेंट्स हैं, वो शायद उन्होंने अपने परिवार में देखा होगा कि बच्चे का जो लालन पालन करना है, उसका सारा जो काम करना है, तो वो माँ ने ही करना है, नहीं। लेकिन आपकी पत्नी भी शायद नौकरी करती होगी, आप भी करते हैं, दोनों रात को बेटा होगा, बच्चा होगा, और कुछ उसकी नैपी चेंज करनी पड़ेगी, तो उस वक्त भी हमें भी वो काम करना है। तो दिस इज अ जेंडर डिफरेंस, दिस इज नॉट अ सेक्स डिफरेंस। मेन मेक गुड डॉक्टर्स, वीमेन मेक नर्सेस। ऑलवेज हमेशा ये जो आगे भी हम थोड़ी चर्चा करने वाले, हमेशा समझते हैं कि नर्स कौन होगी तो वो लेडी होगी, और डॉक्टर्स कौन होंगे तो वो पुरुष होंगे। तो दैट इज द जेंडर डिफरेंस। वो समाज ने तफावत की है। ये बायोलॉजिकली एनीबडी कैन बी डॉक्टर एंड एनीबडी कैन बी द नर्स। और एक लास्ट स्टेटमेंट जो है, तो जस्ट फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के तौर से मैंने ये लिए है, वीमेन हैव लार्जर ब्रेस्ट देन मेन, and this is also biological difference that we know that certain organs are different in the men and women, and because of that these are the biological differences and they have the special qualities. अभी इस प्रकार सेक्स और जेंडर, ये इसकी जो शास्त्रीय व्याख्या परिभाषा करने का हमने प्रयत्न किया, समझने का प्रयत्न किया, और इसके कारण अभी फिर से मैं दोहराती हूँ कि सेक्स आइडेंटिफाइज द बायोलॉजिकल डिफरेंसेस between women and men, and gender it is a socially constructed, समाज ने उसको बनाया हुआ है कि ये पुरुष और स्त्री में क्या भेदभाव है। it refers to the economical, social and cultural attributes and opportunities associated with being male and female. अभी हम लोग आगे की जेंडर डिस्क्रिमिनेशन, वो 7वीं स्लाइड निकालनी है हमें, कि ये जो सारा हमने अभी देखा कि समाज में 7th, दिस इज 6th, इसके बाद की
आफ्टर दिस 7 स्लाइड, हाँ करेक्ट। तो ये जो जेंडर डिस्क्रिमिनेशन है, जातीय भेदभाव हम उसको बोल सकते हैं। तो जातीय असमानता ये हमारे देश में या हमारे समाज में कैसे अनुभव में आती है, हम सभी ने इसका अनुभव किया हुआ है। तो मैं थोड़ा सा संक्षिप्त में, हमारे जन्म से ये स्त्री पुरुष सचमुच बायोलॉजिकल डिफरेंसेस तो अलग है, लेकिन ये सामाजिक भेदभाव तफावत हम कैसे अनुभवते हैं, महसूस करते हैं, वो जरा देखेंगे। जैसे इट हैज एग्जिस्टेड इन इंडिया टुवर्ड्स मेन एंड वीमेन फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन, पीढ़ी दर पीढ़ी हमने देखा है। फ्रॉम बर्थ हम देखेंगे तो फीमेल सेक्स इज परसीव्ड इंफीरियर टू मेल। हमेशा हमें मालूम है कि जब कोई जन्म देते हैं तो क्या हुआ, बेटा हुआ या बेटी, बेटी हुई तो बर्फी दो, बेटा हुआ तो पेड़ा दो। और ये बेटी हुई तो उसको थोड़ा पहले तो इस प्रकार समझा जाता था, लेकिन इंफीरियर, लेकिन अभी फिर से सरकार और समाज में भी बदलाव आ रहा है। और एक तो कैसे कहावत है कि पहली बेटी है वो धन की पेटी होती है, तो इसीलिए अभी कन्या, और कितने सारे पेरेंट्स ऐसे हैं कि उनको एक ही कन्या है और वो भी अच्छी तरह से आनंद से उसका उछेर करते हैं। दूसरा जो बर्थ से हम देखते हैं कि ये बॉयज को या पुरुष जन्म को हम क्यों ज्यादा महत्व देते हैं। तो जनरेशन टू जनरेशन हमारे देश में इस प्रकार यह आया था कि हमारा जो गोत्र है या हमारा जो पिता का जो नाम है वो चलाने वाला जो है, तो वो वंश का नाम आगे बढ़ने वाला, बॉयज आर ओनली हायर्स टू कैरी द फैमिली नेम। लेकिन अभी हमने देखा है कि कितनी लड़कियां हैं वो पिता का जो सरनेम होता है वो भी रखती है और ससुराल में भी जो आता है वो भी नाम रखती है। तो इसीलिए मुझे लगता है ये फैमिली नेम ऐसा चलता रहता है। और एक तीसरा हमारा बर्थ से जो पुरुष और स्त्री के इसमें जेंडर डिफरेंसेस है, उसका कारण है कि आफ्टर डेथ ऑफ पेरेंट श्राद्ध राइट्स जो है, पिता को जो शांति देनी है, पानी देना है, तो वो है तो वो बेटा ही कर सकता है। लेकिन अभी हमने समाज में ये कोरोना के वक्त भी देखा और उसके पहले भी अभी देखा है कि जो परिस्थिति में परिवर्तन आ रहा है और बेटा बेटी दोनों ये श्राद्ध राइट्स करते हैं और दोनों को हक है। सचमुच एक कुछ जो बातें हैं तो वो हमारे समाज में, धर्म में, या कोई जो पंडितों ने कुछ ट्रेडिशन के कारण ऐसी गलत धारणाएं, ब्लाइंड बिलीव्स, अंधविश्वास हमारे समाज में फैलाए थे, लेकिन उसका भी जो तथ्य है, सत्यता है, वो हम ढूंढ रहे हैं। इनजस्टिस टू फीमेल सेक्स सिलेक्टिव अबॉर्शंस, अभी उस पर तो एकदम कायदे से प्रोहिबिशन ही आया है। और इसके कारण पहले फीमेल फिटिसाइड, कन्या भ्रूण हत्या बहुत ही होती है, गर्भ में ही, जन्म के पहले ही वो कन्या का हत्या किया जाता था, उसका एबॉर्शन किया जाता था। और इसीलिए ये कब पता चला कि सेंसस पोल्स जो है, तो डिक्लाइनिंग ऑफ द गर्ल्स पॉपुलेशन, वीमेन पॉपुलेशन है वो 1000 मेल हो गए तो 914 ही फीमेल उनके सामने होती है। और उसके कारण कितने सारे समाज में भी अनेक समस्याएं निर्माण हो जाती है। तो ये बर्थ से हम जेंडर डिस्क्रिमिनेशन या जातीय असमानता देखते हैं। ब्रिंगिंग अप जो है, उछेर है, अभी बेटा या बेटी का जन्म तो हुआ, उसके बाद उनको अन्न क्या देना है, उनके कपड़े क्या पहनने हैं, उनका ड्रेसिंग कैसे होना चाहिए, उनके खेल कौन से होने चाहिए, उन्होंने कौन से खेल खेलने चाहिए। तो लड़की जो है वो घर घर ही खेलेगी और लड़का है तो वो धनुष्य बाण या ये लेकर, गाड़ी लेकर बाहर जाके और कुछ क्रिकेट या खो खो खेलेगा। फूड का भी अभी तो ये कम हुआ है, लेकिन अभी भी ग्रामीण या वनवासी क्षेत्र में कभी कभी हम देखते हैं कि जो खाना होता है तो पहले बेटे को, घर के पुरुष को अच्छी तरह से परोसा जाता है, जो बच्चा होता है वो घर की बेटी या स्त्री खाती है। क्लोथ्स के बारे में तो अभी जैसे हमने वो चार्ट में देखा कि पिंक और ब्लू और ये कपड़े पहनने, वो कपड़े पहनने, लेकिन अभी तो हमने देखा है कि स्त्री और पुरुष के कपड़े, स्पेशली जो यंग जनरेशन है, उनमें तो इतना सारा अभी समानता आ गई है कि कभी कभी बाल काटते हैं, जीन्स पहनते हैं तो पता ही नहीं चलता है कि ये बेटी है या बेटा है। अभी परिवर्तन आ रहा है, लेकिन जो हमारे समाज में चल रहा है उसके बारे में थोड़ी हम बात करते हैं। दूसरी जो है कि बच्चा या बच्ची या स्त्री और पुरुष, उनके साथ में जन्म से या बचपन से जो बिहेवियर होती है, ट्रीटमेंट दी जाती है कि कौन से काम करने हैं, रात को वापस घर में कब आना है, मेहमान आए तो कोई बेटे को नहीं बोलेगी माँ कि तू पानी लेकर ट्रे में देना, लेकिन बेटी को या स्त्री ही लेके जाएंगी। लेकिन अभी उसमें भी समाज में परिवर्तन आ रहे हैं।
ये सारी जो हम चर्चा कर रहे हैं, ये सारे जो उदाहरण दे रहे हैं, ये इसके कारण कि हमें अंतर में, हमारे अंतर झांकना है, हमारे मन में झांकना है, और हमारे परिवार में क्या है, मैं क्या करता हूँ, वेदर यू आर अ गर्ल और अ बॉय, बट व्हाट शुड बी द बिहेवियर इन द सोसाइटी एंड व्हाट वी आर एक्सपेक्टिंग एंड व्हाट वी हाउ वी शुड बिहेव, उसके बारे में हमने हमारे जीवन में या हमारे विचारों में, व्यवहार में परिवर्तन लाने के लिए ये सारा जो चर्चा और विचारणा और ये विषय है, तो उसकी आवश्यकता है। तीसरी बात है कि जो ब्रिंगिंग अप है, तो फैसिलिटीज एंड कंफर्ट्स प्रोवाइडेड, टाइप ऑफ वर्क एक्सपेक्टेड इन द हाउस, यानी क्या खाना खाना है, शायद स्कूटर पंक्चर हो गई तो बेटा ही जाएगा बाहर, या कुछ रिपेयर करना है, फ्यूज गया, गैस का सिलेंडर लगाना, तो बेटे को बोलते हैं बेटी यार है वो दूसरा काम करेगी। अभी लेकिन ऐसा नहीं रहा है। तीसरा जो फैक्टर है कि जो जेंडर डिफरेंसेस, जातीय असमानता हमें दिखाई देती है, वो है शिक्षण में। इसीलिए अभी हम शिक्षा क्षेत्र में, यूनिवर्सिटी में बात करते हैं, इसीलिए हमें तो उसके बारे में ज्यादा सतर्क रहना चाहिए। जो लिटरेसी रेट है, शिक्षण का जो परसेंटेज है, तो मेल या बॉयज जो है तो 82.14% उनका लिटरेसी रेट है, और फीमेल जो है उनका 65.46 है, यानी काफी 20% का फर्क है अभी उसमें भी। इसलिए है कन्याओं को शिक्षण देने के लिए, और 7वीं तक या 10वीं तक तो उन्होंने पढ़ना ही चाहिए, उसका शिक्षण बीच में ही बंद नहीं होना चाहिए। उसके लिए सरकार भी प्रयत्न कर रही है, और समाज में भी अनेक संस्थाएं और माता पिता भी सतर्क हो गए हैं। जैसे हम कहते हैं कि शिक्षण में कि वीमेन्स इमेज इज प्रेजेंटेड इन अ सिलेबस, जैसे अभी वो स्टोरी में मैंने बताया, वैसा कितने सारे, लेकिन अभी नई शिक्षा नीति आई है तो बहुत सारा उसमें परिवर्तन आने वाला है। इसके बारे में हमने चर्चा की है, अलग अलग प्रकार के भाषण भी सुने हैं, पढ़ा भी है। तो लेकिन जितने अभी तक सिलेबस है, पाठ्य पुस्तक है, उसमें हमेशा दिखाई देगा कि जो चित्र दिखाई देते हैं, तो उसमें बच्चा है तो वो गेम खेलेगा या क्रिकेट या गिल्ली डंडा खेलेगा, और लड़की है वो ढिंडी के साथ या डॉल के साथ खेलेगी, या कुछ ऐसा घर घर खेल रही है। पुरुष कुर्सी पर, आराम कुर्सी पर बैठकर अच्छी तरह से वर्तमान पत्र, समाचार पत्र, न्यूज़पेपर पढ़ रहा है, और स्त्री जो है वो कुछ काम कर रही है, पानी भर रही है, ऐसा। तो इस प्रकार के जो सिलेबस पाठ्य पुस्तक में, और बाकी भी जो स्टोरीज है या जिसके बारे में हमें कुछ जानना है हमारे इतिहास में या अभी के वर्तमान युग में से, तो उसमें भी जो कुछ उसके टेक्स्ट या लेसन्स होने चाहिए, उसमें भी अभी परिवर्तन आ रहा है और आना चाहिए। और कोर्सेज सिलेक्टेड एंड फीस स्पेंड, ये अभी हम देखें कि आर्मी है, इंजीनियर है, पायलट है, तो इस प्रकार के जो ये है, तो उसमें पहले ज्यादा तो बहनें नहीं होती थी। पुलिस है, लेकिन अभी बहुत ही महिलाओं को भी उसमें एनकरेजमेंट दी जाती है, वो भी आगे आने लगी है। और उनके लिए जो सेल्फ फाइनेंस कॉलेज होगा, तो उसमें बच्चे के लिए माता पिता है तो कितने लाखों रुपया फीस भरेंगे, और बेटी के लिए उनको थोड़ा प्रयत्न करना पड़ेगा या उसको दूसरे कोर्सेस में डालेंगे। लेकिन अभी इसमें परिवर्तन आ रहा है, लेकिन ये 50% समाज में अभी भी ये जो जेंडर डिफरेंसेस है या जातीय असमानता है वो दिखाई देती है। एम्प्लॉयमेंट, अभी वर्क के बारे में हम जो सोचेंगे, तो इसमें हमने देखा वो स्टोरी में, इम्पॉसिबल ड्रीम में, कि जो महिला है वो भी 8 घंटे काम करती है, उसका पति भी 8 घंटे काम करता है, लेकिन उसको पति से कम सैलरी मिलती है। तो उसी प्रकार ये जो टाइप ऑफ जॉब स्पेसिफाइड फॉर मेन एंड वीमेन जो है, जैसे नर्स एंड डॉक्टर का मैंने कहा कि ये पहले स्पेसिफाइड थे, अभी तो सभी जगह सभी जाते हैं। वेजेस अर्न, जयदेव वैसे कहा कि कॉर्पोरेट सेक्टर में जाओ या पढ़ी लिखी महिलाएं हैं, उनको इक्वल सैलरी मिलती है। लेकिन अभी भी हम जो मजदूर महिला है, कामगार महिला है, खेती में काम करने वाली है, तो उनका हम देखेंगे तो हमें पता चलता है, हमने उसका सर्वे भी किया है हमारी संस्था की तरफ से, तो हमें पता चलता है कि जो महिला है उसको पति के या पुरुष के प्रमाण में कम सैलरी मिलती है। वर्किंग टाइमिंग्स जो है, उनको जो लीव मिलनी चाहिए, उनको हॉलीडेज जो मिलने चाहिए, उनको प्रेगनेंसी के लिए जो छुट्टी मिलनी चाहिए, तो उसके बारे में भी अभी अलग अलग नियम बनाए हैं। अभी कुछ महीने पहले मैंने न्यूज़पेपर में पढ़ा कि जोमेटो कंपनी है जो है, तो उसमें उन्होंने एक बहुत अच्छा सर्कुलर निकाला और सभी अपने जो पुरुष और स्त्री एम्प्लॉय है उनको सर्कुलेट किया, और उनको कहा कि जो महिलाएं हैं तो उनको हर महीने उनका जो मेंस्ट्रुएशन पीरियड होता है
और उसमें उनको तकलीफ होती है, आने जाने के लिए असुविधा होती है, तो उनको 12 स्पेशल लीव मिलेगी। और ये जो 12 स्पेशल लीव मिलेगी, तो उन्होंने लेकिन वो भी बताया गया था कि उसमें जो उनके पुरुष सहकारी है उनको ये नहीं मिलेगी, महिला को मिलेगी, लेकिन पुरुष सहकारी ने उन पर अन्याय हुआ है यही भावना नहीं रखनी है, लेकिन उनके जो महिला सहकारी है उनके प्रति अत्यंत संवेदनशील सेंसिटिव रहना है। और महिलाओं की भी कंपनी ने सर्कुलर में लिखा है कि कोई भी किसी को तकलीफ नहीं होती होगी तो आपको घर बैठना नहीं है, लेकिन सत्यता और ऑनेस्टी से, प्रामाणिकता से ये लीव जो जरूरत हो तो लेनी है। तो इस प्रकार के परिवर्तन में एम्प्लॉयमेंट प्लेस आने का सेंसिटिविटी सुजन सक्सेना, ये जो अभी जो मूवी आई थी इंडिपेंडेंस डे के वक्त दिखाई दे रही थी, तो उसमें बताया है कि वो जब पहली पायलट है, फर्स्ट पायलट, वो जब पायलट बनी तो वहां अभी तक कोई पायलट आया ही नहीं था महिला, तो इसलिए महिला टॉयलेट ही नहीं था, तो उसके लिए टॉयलेट में जाना कितनी दिक्कत वाली थी वो मूवी में भी बताया है। और हम महिलाएं भी कभी कभी इसका अनुभव करते हैं। तो इस प्रकार, और टॉयलेट फैसिलिटी होगी वो भी कैसे प्रकार क्लीन होनी चाहिए, मेंसेस के वक्त भी उस वहाँ क्या फैसिलिटीज होनी चाहिए, इसके बारे में भी ये जो असमानता है वो आनी चाहिए। और ट्रांसपोर्टेशन में भी हम देखते हैं कि बस में है, रेलवे में अलग कंपार्टमेंट होती है, बस में अलग सीट होती है। उसका कारण ही क्या होता है कि महिलाओं को नैसर्गिक जो बायोलॉजिकल डिफरेंसेस हमने देखा, और उसके कारण उसको जो एक आवश्यकता है आराम की, रेस्ट की, तो उसी के लिए ये फैसिलिटीज है। नहीं तो उसको बस इक्वल राइट्स देने हैं या कुछ पुरुषों पर अन्याय करना है, इस भाव से ये नहीं है। अभी ये सारा ये करने के बाद नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। ये जो है जातीय संवेदनशीलता, जेंडर सेंसिटाइजेशन, ये जो डिफरेंस है, तफावत है, भेदभाव है, वो दूर करने के लिए और एक दूसरे के बारे में स्त्री और पुरुष जो है एक दूसरे को किस प्रकार रिस्पेक्ट देंगे, ये रिस्पेक्ट रीडिफाइन जो हम कह रहे हैं कि एक दूसरे के बारे में हमारे मन में क्या भाव होंगे, हमारा क्या व्यवहार होना चाहिए, तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए। क्योंकि हमेशा समस्या का बस चर्चा करके हमें छोड़ना नहीं है, लेकिन उसमें हमें क्या सोल्यूशन निकालना है, किस प्रकार परिस्थिति में परिवर्तन लाना है, इसके बारे में जब हम विचार करते हैं तो हमें लगता है कि मॉडिफिकेशन ऑफ बिहेवियर बाय रेजिंग अवेयरनेस अबाउट जेंडर इक्वेलिटी, स्त्री पुरुष एक दूसरे को सम्मान देने के लिए हमारे व्यवहार में कैसे परिवर्तन लाए, इक्वेलिटी कैसे लाए, तो इसके बारे में हमें विचार करना है। इट इज अ बेसिक रिक्वायरमेंट फॉर नॉर्मल डेवलपमेंट ऑफ एन इंडिविजुअल विदाउट बीइंग इनसेंसिटिव टू द नीड्स ऑफ अ पर्टिकुलर जेंडर। एक दूसरे की जो आवश्यकताएं हैं, जैसे अभी मैंने कहा कि पीरियड्स है या प्रेगनेंसी है या बच्चे को जन्म दिया उसको फीडिंग करना है, तो उस वक्त ये बायोलॉजिकल डिफरेंसेस है और स्त्री की, महिला की आवश्यकता है, तो उसके जो आवश्यकता है उसके बारे में इनसेंसिटिव हमें नहीं बनना है, असंवेदनशील नहीं बनना है, लेकिन पुरुषों ने भी इस प्रकार का विचार करना है। और इसी प्रकार हमारा जो जेंडर है, हमारा जो महिला है, महिला के लिए विचार करें, पुरुष पुरुषों के लिए विचार करें, और इस प्रकार हम कॉम्प्लीमेंट्री एंड सप्लीमेंट्री बनने का प्रयत्न करें। जेंडर इक्वेलिटी इज नॉट अ वुमेन्स इशू बट इट इज अ ह्यूमन इशू विच अफेक्ट्स अस ऑल। हमेशा हम जब महिलाओं के बारे में या ये जेंडर डिफरेंसेस के बारे में बोलते हैं तो हमेशा समाज में या पुरुषों को ऐसा लगता है कि ये तो महिलाओं का विषय है, वो विचार करेंगे। नहीं, ये फक्त महिलाओं का विषय नहीं है, तो ये सारे संपूर्ण समाज का या परिवार का विषय है। बोथ जेंडर्स आर क्रिएशन ऑफ नेचर, जैसे निसर्ग ने ही हमें स्त्री और पुरुष बनाया है, और इक्वेलिटी इज एसेंशियल फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट ऑफ एनी सोसाइटी।
कोई भी समाज है वो स्वस्थ तंदुरुस्त समतोल हो तो उसके लिए दोनों का विकास, दोनों का उत्कर्ष अत्यंत आवश्यक है। एनी गैप इन सर्वाइवल रेट, सेंसस, लिटरेसी, हेल्थ, सेफ्टी एंड रिस्पेक्ट, ये जो है वो जो समाज है या जो ह्यूमन एग्जिस्टेंस है उसको डैमेज करने वाली है। तो इसीलिए जब हम जेंडर डिफरेंसेस या स्त्री पुरुष असमानता के बारे में कहते हैं तो वो गैप किसमें है, तो वो जो है सेंसस, जैसे मैंने संख्या के बारे में कहा कि पुरुषों की इतनी संख्या है जन्म का दर और महिलाओं का है। लिटरेसी रेट के बारे में भी मैंने आपको बताया कि महिलाओं की लिटरेसी रेट, शिक्षण का परसेंटेज वो कम है। उसी प्रकार हेल्थ इश्यूज जो हम देखते हैं तो उनको भी उनके बायोलॉजिकल कुछ क्वालिटीज के कारण कभी कभी हेल्थ प्रॉब्लम्स ज्यादा होते हैं। सेफ्टी, महिला सुरक्षा के बारे में जो हमने विचार किया कि एम्प्लॉयमेंट, वर्क प्लेस के वहाँ जो उसको सेक्सुअल हैरेसमेंट होता है और इसीलिए उसकी सुरक्षा का जो सवाल है वो भी नहीं, लेकिन समाज में वो जब रात को कहाँ जाती है, ट्रैवलिंग करती है या कभी कभी घर में नेबरहुड में भी सुरक्षा का सवाल आता है, उसके बारे में भी हमारी जो संस्था है उन्होंने, हमने बहुत सारे सर्वे किए हैं और बहुत सारे उसके लिए जागृति अभियान भी चलाए हैं। और रिस्पेक्ट, एक दूसरे को सम्मान देना, ये अत्यंत आवश्यक बात है और वो हमें मन से आनी चाहिए, किसी ने कहकर हमें ये नहीं करना है। अभी इस विषय की जब हम ये चर्चा करते हैं कि जैसे हमने देखा कि जातीय असमानता क्यों है, जातीय संवेदनशीलता कैसे बढ़ेंगे, जैसे जेंडर डिफरेंसेस क्यों है, जेंडर सेंसिटिविटी कैसी बढ़े, तो उसके लिए थोड़ा सा हमें हमारे इतिहास में, प्राचीन काल में ये महिलाओं की हमारी जो स्थिति है वो भारत में कैसे परिवर्तन हुआ, किस प्रकार, और अभी वर्तमान स्थिति क्या है, उसके बारे में एकदम संक्षिप्त में हम जानना चाहेंगे। जैसे हम देखते हैं कि हमारा जो वैदिक पीरियड था तो उसमें गार्गी, मैत्रेयी जैसी विदुषी थी, वो भी पुरुषों के साथ साथ चर्चा करती थी, ज्ञानी थी और दे हैव एंजॉयड इक्वल एंड रिस्पेक्टेबल स्टेटस इन इंडिया। और नारी तो नारायणी यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, इस प्रकार के जो सुभाषित है उसी के द्वारा ही हमें पता चलता है कि कितना नारी को सम्मान दिया जाता था। तो ये ऐसी स्थिति आने का कारण क्या हुआ, तो ये जो हम देखेंगे तो इन मुगल पीरियड वीमेन वर प्रोटेक्टेड बाय देयर फादर और हस्बैंड और सन एंड फॉर सेफ्टी पर्पस, क्योंकि उस वक्त हमें मालूम है कि किस प्रकार मुस्लिम लोगों का आक्रमण हो रहा था और किस प्रकार महिला सुरक्षा बहुत ही आवश्यक थी। और ये रॉन्ग ट्रेडिशंस जो है उस वक्त, जो चाइल्ड मैरिजेस हुए कि छोटी बच्ची होगी तभी उसका विवाह हो जाए तो वो अपने पति के साथ रहे, पति उसका रक्षण करे, इसीलिए चाइल्ड मैरिजेस, ये जो प्रथाएं है, ये ट्रेडिशंस है, उसकी शुरुआत हुई, उसका कारण उस वक्त की जो सामाजिक स्थिति थी उसमें है। जैसे पॉलीगॉमी है कि मैंने जैसे कहा कि मैन एंड वुमन, उसमें जो सेंसस में रेशो है पुरुष ज्यादा है महिलाएं कम है, तो उस वक्त ये पॉलीगॉमी कभी कभी हो जाती थी। फीमेल फिटिसाइड, जो कन्या भ्रूण हत्या के बारे में मैंने कहा कि कन्या को जन्म ही न दे तो उसका सुरक्षा का सवाल ही नहीं आएगा। पर्दा सिस्टम जो आई और इलिटरेसी, बाहर जाकर जो पढ़ाई लिखाई करते थे तो वो भी जो बंद हो गया, तो ये सारा जो है तो उस प्रकार की उस सामाजिक और राजकीय स्थिति के कारण ये महिलाओं की स्थिति में परिवर्तन हुआ। ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल धीरे धीरे हमारे जो सोशल रिफॉर्मर्स हैं तो वो आगे आने लगे। दे स्टार्टेड अपोजिंग एंड कर्बिंग द रॉन्ग प्रैक्टिसेस टुवर्ड्स वीमेन। गांधी जी है और दूसरे भी हमारे कितने सारे समाज सुधारक हर एक प्रांत में हुए, उन्होंने बहुत सारा महिलाओं के लिए काम किया है। गांधी जी एंड मेनी थिंकर्स स्टार्टेड मूवमेंट्स लाइक एजुकेटिंग द वुमन, विडो रीमैरेजेस, मोनोगॉमी, एक पत्नी व्रत यानी विधवा विवाह, और महिला शिक्षण देने के लिए प्रोहिबिटिंग डाउरी, जो हम डाउरी देते हैं उसके ऊपर निर्बंध लाने के कारण, उसी के कारण भी कितने महिलाओं के, स्त्रियों के मृत्यु हो जाते थे ससुराल में। फीमेल फेटिसाइड यानी कन्या भ्रूण हत्या, सती जो था वो प्रथा भी क्यों थी, तो वो महिला पति के निधन के बाद उसका रक्षण रहने के लिए, चारित्र रक्षण करने के लिए वो कभी कभी सती जाती थी। पॉलीगॉमी, बाकी ऐसी जो कस्टम्स है तो वो लॉ से बंद हो गई और धीरे धीरे समाज, तो भी वो चल रही है
अभी भी कुछ कुछ चल रही है, तो समाज ने जागरूक होकर उसे बंद करने की आवश्यकता है। गांधी जी एनकरेज वीमेन टू पार्टिसिपेट इन इंडिपेंडेंस मूवमेंट लाइक सत्याग्रह, boycotting foreign products etc. and carried out various social and economical reforms. हम लोगों को मालूम है कि हमारे जो स्वातंत्र संग्राम हुआ तो सत्याग्रह में पुरुषों के साथ महिला भी आगे बढ़ी, ये गांधी जी के कारण ये हुआ, तो उनको समानता और उनको भी ये हक दिए गए, उनको भी ये आत्मविश्वास दिया गया। और उसी प्रकार जो परदेशी माल था उसकी होली बनाने की है तो उसको बचाने का है तो वो घर से शुरुआत होती है। अभी जैसे ये चाइना जो प्रोडक्ट्स है उसको हमने प्रोहिबिट किया और स्वदेशी की जो मूवमेंट चल रही है तो उसमें ज्यादातर तो स्त्री का ही ज्यादा उसमें केंद्र बिंदु है और उसका ही कर्तव्य है, क्योंकि वही सब घर में जो जो चीजें लाने वाली है तो वो महिला है। तो इसीलिए उसी प्रकार गांधी जी ने भी ये परदेशी जो गुड्स है, परदेशी वस्तु है, उस पर बहिष्कार लाने के लिए महिलाओं का सहकार लिया था। अभी ये सारा हो जाने के बाद हमने हमारी जो स्थिति थी वो देखी, असमानता क्यों है वो देखा, किस प्रकार संवेदनशीलता लाना है। अभी लास्ट में सचमुच सारे स्टूडेंट्स और कार्यकर्ताओं को मैं कहना चाहती हूँ कि हम लोग जो साथ में सामने होते हैं तो हर एक के पास में कुछ न कुछ इसके लिए क्या सॉल्यूशन कर सकते हैं, किस प्रकार ये परिस्थिति में परिवर्तन कर सकते हैं। और रिस्पेक्ट रीडिफाइन, हम एक दूसरे के सम्मान की ये परिभाषा है वो किस प्रकार बदल सकते हैं, किस प्रकार एक दूसरे को अत्यंत प्रेम से आदर से वर्तन कर सकते हैं, इसके बारे में चर्चा की होती। लेकिन अभी ये हो नहीं सकता, इसीलिए मैंने जो पॉजिटिव एक्शन प्लान फॉर जेंडर सेंसिटाइजेशन कुछ मुद्दे लिखे हैं उस पर हम देखेंगे और उसके बाद हम चर्चा करेंगे। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। नेक्स्ट स्लाइड। हमेशा परिस्थिति क्या है ये जानने के बाद उसमें बदलाव लाने के लिए हमें कार्य योजना करनी चाहिए। सैद्धांतिक बातों से काम नहीं चलेगा, ये ऐसा है वैसा है खाली बातें करने से या व्याख्यान देने से नहीं चलेगा, लेकिन हम सभी ने साथ में आकर क्या कर सकते हैं वो विचार करना है और वो आचार में लाना है। और इसमें सबसे ज्यादा शैक्षणिक संस्थाएं हैं, उनका बहुत ही बड़ा सहभाग है, क्योंकि हमारी जो शैक्षणिक संस्थाएं अभी भी जो मेरा श्रोतागण है तो वो सारे जो स्टूडेंट्स हैं, यूथ है, तो वो जो लड़कियां और लड़के, महिला और पुरुष जो है वो भविष्य के पति पत्नी है, भविष्य के माता पिता है। और इसीलिए उनके विचारों में अभी ये सुनने के बाद हम इंट्रोस्पेक्शन करेंगे, अंतर्निरीक्षण करेंगे और उसमें हमारे परिवार में जो कुछ चलता है या हमारा माता पिता का या बाकी लोगों का क्या वर्तन था समाज में और क्या है उसे हमें नहीं देखना है, लेकिन मुझे स्वयं में क्या परिवर्तन लाना है और मैं किस प्रकार इस ये जेंडर सेंसिटाइजेशन या जेंडर सेंसिटिविटी लाने के लिए मैं करना चाहता हूँ या चाहती हूँ, इसका हम एक एक्शन प्लान अभी थोड़ा विचार करेंगे। देखिए, when God created man and woman, He gave woman power to give birth to continue generation, and that is a evidence of being powerful. मैं हमेशा महिलाओं को कहती हूँ कि कभी हमें असमर्थ, अशक्त, दुर्बल समझना ही नहीं है। ये जो मेंस्ट्रुएशन है या प्रेगनेंसी है ये हमारे लिए एक आशीर्वाद है, ये हम पुरुषों से कुछ बेहतर है, क्योंकि भगवान ने उसके बाद जैसे भगवान ने ये सृष्टि निर्माण की, उसके बाद ये सृष्टि निर्माण या सृष्टि का जो सातत्य है वो चलाने के लिए महिला को ही समर्थ दिया है, इसीलिए महिला ही बच्चे को जन्म दे सकती है। That's why we are very powerful and we have to consider ourselves very strong. We all have uniqueness. जैसे हम हमेशा कभी इक्वालिटी, समानता लाना नहीं, स्त्री ने पुरुष जैसा बनना नहीं है, पुरुष ने स्त्री जैसा बनना नहीं है, क्योंकि हम दोनों में निसर्ग के कारण हमें जो शरीर मिला है और हमें जो मानसिक और शारीरिक हमारे जो भाव है उसके कारण हमारी कुछ विशेषता है, यूनिकनेस है। वी आर नॉट इक्वल, वी नीड टू अंडरस्टैंड द ब्रेन फंक्शनिंग, फिजियोलॉजिकल, साइकोलॉजिकल साइंस बिहाइंड जेंडर डिफरेंसेस। ये जो सारे सेक्स डिफरेंसेस तो है ही, लेकिन ये जातीय थोड़े जो तफावत है, भेदभाव है, उसका कारण क्या है
कि हमारा जो ब्रेन फंक्शनिंग है, हमारे जो शारीरिक तफावत है या शारीरिक जो बदल है एक दूसरे के बीच में, और उसके कारण जो साइकोलॉजिकल मानसिकता है, हमारे जो गुण है, भावना है, इसके कारण ये सारे डिफरेंसेस है। और उसको हमने पॉजिटिव मैनर से, सकारात्मक भाव से समझना है। वी नीड टू टेक एडवांटेज ऑफ ईच अदर्स स्ट्रेंथ। इसलिए जो मैंने कहा कि हमें कॉम्प्लीमेंट्री और सप्लीमेंट्री बनना है। दूसरे की जो वीकनेसेस है उसके वहां हमें खड़ा रहना है, और दूसरे की जो शक्ति है वो हमें उसका उपयोग करके लेना है। और इसी के कारण ही दोनों, जो हम कहते हैं कि एक रथ के दो पहिए हैं, और इसीलिए ये संसार चक्र है, जो है संसार है, वो चलता रहता है। देयर इज एन अर्जेंट नीड टू शैटर लोड ऑफ अवर ऑर्थोडॉक्स बिलीफ। जो परंपरा से, प्राचीन काल से जो कुछ अंधविश्वास, ऑर्थोडॉक्स जो विश्वास है, परंपरा है, वो चलती आई है, वो हमें बदलनी है। और वीमेन के बारे में ही ज्यादा है, महिलाओं के बारे में, और उसमें उनका जो महिलाओं का उत्कर्ष होना चाहिए, विकास होना चाहिए, उनका जीवन अच्छी तरह से रहना चाहिए, समतोल होना चाहिए, उसके लिए हम सभी को प्रयत्न करना है। इसके लिए हमें क्या करना चाहिए? तो ट्रेनिंग एंड अवेयरनेस रिगार्डिंग जेंडर इक्वालिटी इज रिक्वायर्ड टू ब्रिंग इन एजुकेशनल सेटअप, वर्क प्लेस एंड सोसाइटी। हमारे ये 3 सेटअप है, तो उसमें सभी जगह प्रशिक्षण, ये जो वेबिनार हो रहा है वो क्या है? ये एक प्रकार का ट्रेनिंग है हमारे मन का, हमारे विचारों का, और हम जागृति लाना, वैचारिक जागृति लाने का प्रयत्न कर रहे हैं। और इसी के कारण ये एजुकेशनल सेटअप, हमारे वर्क प्लेस, जहां जहां हम कार्यस्थल पर है वहां भी, और हमारे समाज में, इस प्रकार हम एक दूसरे के प्रति जो सकारात्मक भाव निर्माण करने हैं उसका प्रयत्न करेंगे। वी नीड टू एलिमिनेट जेंडर बेस्ड प्रेजुडाइज एंड चेंज स्टीरियोटाइप लाइफस्टाइल। जो परंपरागत वही चलती आई है कि वो महिला है। एक मैंने बहुत अच्छी मूवी देखी थी, मुझे अभी याद नहीं है, तो उसमें क्या होता है कि महिला है वो बाहर जाकर काम करती है, और घर जो पुरुष है, पति है, वो निश्चित करता है कि मैं घर का सारा देखूंगा कारभार। तो ये स्टीरियोटाइप जो लाइफस्टाइल हमारी जो है, जैसे उसके अलग अभी हम देखते हैं, तो वो लाइफस्टाइल और जेंडर बेस्ड जो प्रेजुडाइज है, पक्षपात है कि स्त्री ये कर सकती है, पुरुष ये कर सकता है, तो वो जो है तो वो हमें दूर करना है। We need to rethink our working cultures as regard to roles and abilities of women and men, including attitude towards women in leadership position. ये बहुत ही हमारे जो सरकार में जो नेतृत्वशील नेता महिला है, या हमारे समाज में है, अभी कितने सारे बैंक है, कॉर्पोरेट सेक्टर्स है, ऑफिसेस है, सभी जगह नेतृत्व के, लीडर के जगह महिलाएं आई है। तो उनके साथ जो पुरुष काम करते हैं उनको हमेशा एक इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स होता है। क्यों? कोई महिला है और उसका पुरुष बॉस होगा तो उसको कभी इंफीरियर नहीं लगता है, वो उनके साथ साथ काम करती है, उनको सहकार देती है। तो उसी प्रकार कोई महिला नेता होगी, लीडर होगी, तो पुरुष ने कभी इस प्रकार का जो समझ है या उस प्रकार का जो कॉम्प्लेक्स है वो मन में नहीं आना चाहिए, क्योंकि हमेशा हमारे क्वालिटीज, हमारे गुण, हमारा शिक्षण, हमारा अनुभव, उसके मुताबिक ये सारा लीडरशिप रोल मिलता है। टू प्रेजेंट बेटर नॉलेज and understanding of gender issues at all levels, society through syllabus, role play, drama, street play, exhibitions, posters, print and electronic media, social media, etc. तो फक्त ये संस्थाओं का, शैक्षणिक संस्थाओं का ही ये काम नहीं है, तो सारी हमारे जैसी जो सामाजिक संस्थाएं हैं या दूसरे भी अलग अलग प्रकार के जो सारे मूवमेंट्स चलती है समाज में, तो उन्होंने ये इस प्रकार का ज्ञान, इस प्रकार की समझदारी, ये जेंडर इशू जो है, जातीय जो ये समस्याएं है, उनको एट ऑल लेवल्स, यानी छोटी बच्चियां होगी या छोटे विद्यार्थी है, पुरुष है, सीनियर सिटीजन्स है, कोई भी, या पढ़े लिखे लोग हैं, या मजदूर है, या किसान है, सभी के लिए एट ऑल लेवल्स हमें ये जो जागृति लानी होगी। तो हमारी जो पाठ्य पुस्तकें हैं, रोल प्ले, अलग अलग प्रकार के रोल प्ले करके हम बता सकते हैं, नाटक या चित्रपट या टीवी सीरियल से उससे बता सकते हैं, स्ट्रीट प्ले में से हम कुछ उदाहरण दे सकते हैं, प्रदर्शनी कर सकते हैं, पोस्टर्स करते हैं। और अभी तो ये जो सोशल मीडिया जो है, हमारा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है और प्रिंट मीडिया है,
तो उसमें से जागृति लाना, क्योंकि लॉकडाउन में और ये कोविड में तो हम एक दूसरे को मिल नहीं सकते, तो ये तीनों मीडिया का उपयोग करके हम इस प्रकार की जागृति और इस प्रकार का विचार प्रसार कर सकते हैं। अभी अंत में कहूंगी कि बोथ जेंडर्स नीड टू सपोर्ट, प्रमोट, upliftment and wellness of their own and opposite gender, so as to overcome any sort of differentiation or harassment. एक दूसरे को जो कुछ सतामणी या एक दूसरे को जो कुछ हैरेसमेंट हम करते होंगे या एक दूसरे के बारे में जो तफावत है वो कम करने के लिए हमने हमारे जो जेंडर है, हमारी जाति जो है वो और अपोजिट जेंडर है, तो उनको हमने सहायता देना चाहिए और उनके अपलिफ्टमेंट के लिए, उनके विकास के लिए, उनके अच्छे तंदुरुस्त स्वास्थ्य के लिए, मानसिक स्वास्थ्य के लिए हमने एक दूसरे को मदद करनी चाहिए। नेशंस कैन नो लॉन्गर अफोर्ड टू इग्नोर वीमेन, क्योंकि वीमेन जो है तो 50% पॉपुलेशन इन एनी नेशन, स्पेशली इन इंडिया, हाफ ऑफ देयर पोटेंशियल ह्यूमन रिसोर्स इज महिला। तो इसीलिए महिलाओं के प्रति कभी जो अन्याय होता होगा, शोषण होता होगा, तो उसके बारे में हम निग्लेक्ट नहीं कर सकते, दुर्लक्ष्य नहीं कर सकते। एंड जेंडर सेंसिटिव एजुकेशन इज टू मेक द विजन ऑफ एजुकेशन फॉर ऑल रियलिटी। ये वास्तव में लाने की ये है, ये खाली विचारों की ये नहीं। अभी अंत में मैं स्वामी विवेकानंद जी के वचनों से ये समापन करना चाहती हूँ। विवेकानंद जी कहते हैं, इज देयर एनी सेक्स डिस्टिंक्शन इन द आत्मन सेल्फ, इन मैन एंड वुमन, ऑल इज आत्मन। कितना बढ़िया कहा है विवेकानंद जी ने कितने सालों पहले। वो कहते हैं क्या आत्मा में कोई लिंग भेद है, ये पुरुष का आत्मा और ये स्त्री का आत्मा, ऐसा कुछ है? नहीं, दोनों के बीच भेदभाव से बाहर हमें निकलना होगा, क्योंकि सब कुछ आत्मा ही है, कोई स्त्री नहीं है, कोई पुरुष नहीं है। बर्ड कैन नॉट फ्लाई विथ वन विंग, दे नीड बोथ द विंग्स। उसी प्रकार नेशन ऑल्सो कैन प्रोग्रेस विथ मेन एंड वीमेन। और बहनों के लिए अभी हम जब ये बात करते हैं तो एक दो जगह हमारा यूनिवर्सिटी में सेमिनार हुआ था, तो जो बॉयज स्टूडेंट्स हमारे थे उन्होंने कहा कि मैडम आप तो कहती है, लेकिन अभी तो हमारे लिए कुछ बोलने की आवश्यकता है, जेंट्स के लिए, क्योंकि कभी कभी बहनों को इतनी सारी सहूलतें, इतने सारे कंसेशन मिल रहे हैं कि हमारे ऊपर अन्याय हो रहा है। तो इसीलिए मुझे बहनों के लिए कुछ कहना है, क्योंकि हमें भी हमारा एक इंट्रोस्पेक्शन करना है। Outright of interferences is limited entirely to giving education. Women must be put in a position to solve their own problem in their own way. ये विवेकानंद जी के वचन हैं। No one can or ought to do this for them, and our Indian women are capable of doing it as any in the world. विवेकानंद जी को अपने भारतीय नारी के लिए इतना आत्मविश्वास था, इतना अभिमान था कि वो कहते हैं कि हम महिलाओं को शिक्षण देंगे, लेकिन किस लिए? लेकिन उनकी समस्याओं को अपने तरीके से हल करने के लिए। वो स्थिति उनकी आ जाएगी और उनको उसमें रखना चाहिए कि उनको इस प्रकार का शिक्षण देना चाहिए कि वो अपनी अपनी समस्याओं का हल खुद निकालेंगे। उनके लिए ऐसा कोई नहीं कर सकता। सेल्फ हेल्प इज द बेस्ट हेल्प, दैट वाज द स्लोगन ऑफ विवेकानंद जी। तो इसलिए हमने हमारे लिए कुछ करना चाहिए, नहीं कोई किसी ने करना चाहिए। और हमारी जो भारतीय महिलाएं हैं वो दुनिया में अन्य किसी के समान और सक्षम है। हम कुछ कम नहीं है, हम सब कुछ कर सकती है। मैं तो ऐसा कहना चाहती हूँ कि हम कितनी तरह से, कितने परसेंटेज से बाकी महिलाओं से भी बेहतर है। और लास्ट में स्वामी जी कहते हैं, कैन यू बेटर द कंडीशन ऑफ योर वीमेन, देन देयर विल बी होप फॉर योर वेलबींग, अदरवाइज you will remain as backward as you are now. ये सभी समाज के लिए हमें संदेश है कि हमारी बहनें, हमारी जो महिलाएं हैं, देश में स्त्रियां हैं, तो उनकी जो परिस्थिति है उसमें सुधार लाने की बहुत आवश्यकता है। और ये जब आएगा तभी हमारा जो समाज है, हमारा देश है, वो अत्यंत प्रगत हो सकता है, नहीं तो जैसा है वैसा ही बैकवर्ड रहेगा। मुझे लगता है महिला पुरुष सभी समाज के लिए ये स्वामी जी के जो वचन है वो अत्यंत प्रेरणादायी और दिशादायी है। तो इसके साथ ही मैं इतना लंबा मेरा वक्तव्य है वो पूर्ण करती हूँ, समापन करती हूँ। धन्यवाद
अस्तु, यहाँ कोई प्रेक्षक दिखाई नहीं दे रहे, इसलिए पता नहीं कोई सो गए हैं या सुन रहे हैं। आपके चैट बॉक्स में ऐसे अभी जो कुछ प्रश्न आएंगे उससे पता चलेगा कि आपकी उसके ऊपर क्या प्रतिक्रिया है। धन्यवाद। Thank you so much, ma'am, for giving a precious time. So thank you very much, madam. Hello. हेलो। हेलो। Yes. Yes, हाँ। madam. ठीक है मैम। सो कोई क्वेश्चन तो अभी नहीं है अभी चैट बॉक्स में, तो आप ऐसा हो तो आपका मेल आईडी या ऐसा कुछ प्रोवाइड कर दो, तो अगर कोई है क्वेरी हाँ ठीक है, वो वहाँ पे हम सेट कर आपके देंगे। पास मेरा मेल आईडी है, आप हाँ, दे मैम। सकते हैं। ओके। और आपकी भी कुछ प्रतिक्रिया होगी शीतल की या हेतल की, तो वो व्यक्त कर सकते हैं। हेलो, हम मीटिंग हाँ ओवर। नमस्ते। हेलो। यस शीतल मैम। हाँ सुनाई दे रहा है। हाँ, मीटिंग ओवर करनी है अभी। ठीक है मैम, क्योंकि टाइम तो हो चुका है 4:30 के आसपास का जो शेड्यूल था हमारा। तो आपको अगर कुछ आप अगर अपने थॉट रखना चाहते हो तो बोल सकते हो मैम, शीतल मैम। हेलो। हाँ, ठीक है, मीटिंग हम ये कर सकते हैं, समापन कर सकते हैं। ओके मैम, बस हो गया टाइम तो फिर। सो थैंक यू वेरी Thank you मच so मैडम much. for providing the very much information regarding the gender equality and different roles. So thank you very much madam. Thank you so much. Thank you.